Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Quality Coaching Academy and I am Professor Dr. Ismail. I am going to discuss the chemistry part of Sunday test. So look at question number 69. What mass of lithium nitride could be formed from 104 gram of lithium and excess of nitrogen gas? So first of all, you will write the balanced chemical equation. Now the formula of lithium nitride is Li3 and N. So I will balance it half mole of nitrogen. Now you see that 3 moles of lithium produces 1 mole of lithium nitride. Now 1 mole of lithium is 7 gram because atomic mass of lithium is 7. So this is 3 into 7 is equal to 21 gram. And 1 mole of lithium nitride will be equal to 3 lithium plus 1 nitrogen. That is 3 multiplied by 7 plus 14. So this gives us a mass of 35 gram. It means that 21 gram of lithium produces 35 gram of lithium nitride. So 104 gram of lithium will produce X gram of lithium nitride, Li3N. This is the way to calculate the amount of the unknown. So आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें. So ये हो जाएगा 21 multiplied by X is equal to 35 into 104 or X is equal to 35 into 104 divided by 21 and we will get 173.3 gram. So in question number 69 we have correct option number D. Option D is correct. Question number 70. Remember that we are drawing the molecular orbital diagram of boron molecule B2. The atomic number of boron is 5. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, and 2p1. So this is 1s orbital of one boron and this is 1s orbital of another boron atom. This is 2s orbital of one boron and 2s orbital of the other boron. This is 2s of one boron and 2s of the second boron. These 2s orbital also contain 2 electrons. And in case of boron, you have 2px, 2py, and 2pz. This one has 1 electron because p has 1 electron. And here you have 1 electron and the 2px of another boron. तो जब ये molecular orbital diagram हम इसका बनाते हैं तो 1s और 1s आपस में मिलकर एक bonding और एक anti bonding sigma 1s and this is sigma star 1s. 2 electron goes here and 2 here. Then the 2s orbital combine to make sigma 2s bonding and sigma star 2s anti bonding. Both will have 2 electrons. और in case of boron जब p आपस में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है ये नाइट्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मुकाबले में ये डायग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है. तो यहाँ पर the order of molecular orbital is like this. यहाँ पर ये pi 2py होगा and this is pi 2pz and this is sigma 2px. This is pi 2py star, pi 2pz star and this is pi 2py star and this is sigma star 2px. So in case of
In case of boron, the order of energies are different. 2px has higher energy as compared to 2p, pi 2pz and pi 2py. So the remaining electron of 2p and 2p will occupy 2p, pi 2pz and pi 2py, and the 2px orbital is left empty. तो यहाँ पर जो एनर्जी डायग्राम है ये ऑक्सीजन से ज़रा डिफरेंट है. ऑक्सीजन में ये ऑर्बिटल नीचे होता है, जबकि बोरान में ये दोनों ऑर्बिटल नीचे होते हैं, 2px ऑर्बिटल इसके ऊपर होता है. The arrangement of these orbital, the off-bar order or the energy order depends on the electronegativity of the element. Greater is the electronegativity of the element, lower will be the energy of 2px. But if an element has lower electronegativity, then the order of orbital is different, and 2px has higher energy than pi 2pz and pi 2py. So the correct configuration of the molecule will be option number C में जो molecular orbital diagram given है, so that is the correct option. Question number next जो है question number 71. हमारे पास दो एलिमेंट हैं एक कंपाउंड में, एक इसमें हाइड्रोजन है और दूसरा इसमें कार्बन है. हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है वो 14.4% है और कार्बन की जो परसेंटेज है वो 85.6% है. तो ये कहता है कि व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. तो सबसे पहले आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं. तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. तो ये हो जाएगा 14.4 divided by 1 is equal to 14.4. Then you will find moles of other element, that is carbon. So percentage of carbon divided by atomic mass of carbon is equal to 85.6 divided by 12 is equal to 7. तो आप अगर हाइड्रोजन और कार्बन के मोल्स के बीच में अगर आप रेशो देखें, सो दिस इज 14.4 रेशो 7. अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें छोटे नंबर पर इन दोनों को आपने डिवाइड करना होगा. सो यू विल गेट 1 here and 2 here. It means that the ratio between the number of moles of carbon and hydrogen is 1:2. So the empirical formula of the compound will be CH2. So option number B is correct. Question number 71 में option number B जो है ये correct है. Question number next जो है 72. 44.5 grams each of the following gases at 100 degree and 1 atmospheric pressure are taken. Which one will have least volume? तो ये देखें, आपको पता है कि volume of a gas is directly proportional to the number of moles of the gas. तो जिसका मोल जिसके ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और जिसके मोल्स कम होंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. चूंकि मासेस हमारे पास इन तीनों गैसों के बराबर बराबर हैं, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसके मोल्स की तादाद कम होगी. और जब मोलर मास ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा. तो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है. उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर मास जो है वो HF से भी ज़्यादा है, HCl से भी ज़्यादा है और HBr से भी ज़्यादा है. इसका एटॉमिक मास 1 है और आयोडीन का 127 है. तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ 128.
जबकि HCl का 36.5 होता है और HBr का ये तकरीबन 80 होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा मोलर मास इसका है, इस वजह से इसका मोलर मास जब ज़्यादा होगा तो इसके कम मोल बनेंगे, जब मोल कम होंगे तो वॉल्यूम भी इसका कम होगा। तो 72 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड विल ऑक्युपाई least volume because it has least number of moles. Why it has least number of moles? Because it has greater molar mass. Question number next जो है 73, हमारे पास दो मुख्तलिफ फ्लास्क हैं, एक में हमारे पास गैस A है और दूसरे फ्लास्क में we have गैस B, और इसकी जो डेंसिटी है वो इसके मुकाबले में 2 टाइम्स ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी जो है इसके मुकाबले में डबल है, और मोलर मास इसका हाफ है उसके मुकाबले में। तो आप देखें PM इज़ इक्वल टू DRT या P इज़ इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाई M। तो जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मोलर मास के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अब देखिए A जो है तो इसकी डेंसिटी भी डबल है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर डबल होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका मोलर मास जो है वो उसके मुकाबले में आधा है, हाफ है। तो मोलर मास जब हाफ होगा तो प्रेशर फिर उसका डबल हो जाएगा। तो एक डेंसिटी डबल होने से इसका प्रेशर डबल हो जाएगा और एक मोलर मास को हाफ करने से इसका प्रेशर डबल होगा। तो इसका जो प्रेशर होगा वो B के मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसका प्रेशर जो है 1/4 है तो इसका प्रेशर 1 होगा, या इन अदर वर्ड इसका प्रेशर अगर 1 है तो इसका प्रेशर 4 होगा। तो इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि गैस ए का प्रेशर 1 होगा और गैस बी का प्रेशर 1/4 होगा, यानी ये 4 टाइम कम होगा और इसका प्रेशर 4 टाइम ज़्यादा होगा। तो इसका प्रेशर 4 टाइम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसकी डेंसिटी भी डबल है और मोलर मास इसका हाफ है। तो मोलर मास हाफ होने से भी प्रेशर डबल हो जाता है और डेंसिटी डबल होने से भी प्रेशर डबल हो जाता है। तो टोटल जो है ये 4 टाइम इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 74, हमारे पास एक गैस मीथेन है और दूसरी गैस जो है वो ऑक्सीजन है। ये कहता है कि अगर हम इसको एक ही कंटेनर में इन दोनों गैसों के बराबर बराबर मासेस अगर हम लें, लेट सपोज मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूं और इसके साथ 32 ग्राम मीथेन में लेता हूं और एक ही कंटेनर में मैं इन दोनों को बंद करता हूं, इक्वल मासेस मैंने लिए हैं। तो देखो इसका 32 ग्राम जो है ये 1 मोल के बराबर है, बिकॉज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 और मीथेन का मोलर मास है 12 + 4 इज इक्वल टू 16। तो इसके हमारे पास आते हैं 2 मोल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो जिस गैस के मोल्स डबल होंगे तो उसका प्रेशर भी डबल होगा। मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 1 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन जो है दैट विल बी 2। व्हाई? बिकॉज देयर नंबर ऑफ मोल्स आर इन 1:2। आप देखें टोटल प्रेशर कितना होगा। टोटल प्रेशर P total will be equal to
1 plus 2 is equal to 3. So the partial pressure of oxygen will be equal to 1 divided by 3. इसका मतलब ये है कि टोटल प्रेशर अगर 3 है तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 1 होगा. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी 1 आउट ऑफ 3. तो 1 आउट ऑफ 3 तो हमारे पास ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो आप इसका मल्टीपल बनाएं तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6 और 1 बाई 3 एक चीज़ है, लेकिन ये भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इसका ट्रिपल ले लें. इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें. तो 1 बाई 3 या 2 बाई 6 या 3 बाई 9 ये एक ही मतलब रखते हैं. दे हैव द सेम मीनिंग. तो हमारे पास ऑप्शन में 3 बाई 9 है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 75. When a clean capillary tube is dipped into mercury, आप अगर मरकरी लें एक टब में और इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डालें, तो बजाय इसके कि मरकरी इसके अंदर ऊपर चढ़ जाए, मरकरी का लेवल जो है यहाँ पर कम हो जाता है. मिसाल के तौर पर अगर बाहर मरकरी का लेवल इतना है तो इस कैपिलरी ट्यूब में मरकरी का लेवल इससे नीचे होगा. इसकी वजह यह है कि मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हैं, तो ग्लास के मॉलिक्यूल जो हैं वो मरकरी के एटम्स को रिपेल करते हैं. इस वजह से मरकरी इधर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मरकरी का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो मरकरी इस किस्म की शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा. इसके बरअक्स अगर आप पानी के अंदर कैपिलरी ट्यूब डालें तो फिर ये होगा कि ये जो पानी है तो ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है ऊपर चला जाता है. सो देयर इज राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी. लेकिन मरकरी जो है इसमें कोहेसिव फोर्स स्ट्रांगर हैं एडहेसिव फोर्सेस के मुकाबले में, so it will fall down. So the capillary, inside the capillary, the level of mercury will decrease, the height of mercury will fall. So 70, question number, this is question number 77. Question number 75 नहीं है, this is question number 77. 77 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आप 75 को देखें. आपके पास वांडरवाल इक्वेशन है P प्लस एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. दिस इज द वांडरवाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ द गैस. तो ये जो ए है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जिस चीज़ में ज़्यादा होती हैं उसका कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा. आपके ख्याल में इसके का जो सही आंसर है वो वाटर है, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू. वाटर के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हैं लेकिन लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं टू द गैसेस. तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, लिक्विड की बात हम नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस. सो इन गैस फेज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आर ग्रेटर एज कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन गैस फेज. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द लिक्विड फेज, क्योंकि वो सबको पता है कि लिक्विड फेज में तो वाटर में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं. तो इस वजह से गैस फेज में बेंजीन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं. तो ऑप्शन नंबर डी बेंजीन इज़ करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट.
Question number 76. On sudden expansion the temperature of the ideal gas. तो ये याद रखें कि गैसें जो हैं, रियल गैसेस की हम बात करते हैं कि जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंशन पर उनमें कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाती है और इसको जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ये दो एक्सेप्शन हैं, दे हीट अप ऑन एक्सपेंशन, और अदर गैसेस जो हैं सो दे कूल डाउन ऑन एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपके साथ ट्रिक किया गया है, आइडियल गैस की बात की है, तो आइडियल गैस में न अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और न उसमें रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। इस वजह से आइडियल गैस को अगर आप एक्सपेंड करें तो ये इट विल नीदर हीट अप, ये न गर्म होगा, एंड नर it will cool down. So we are talking about the ideal gas. So ideal gases on expansion, they neither show heating effect and nor they show cooling effect. So option number D is correct. Question number 78. Question number 78 on 78. London dispersion forces are the only forces, they are the only forces which exist, जो exist करती हैं, कहाँ पर exist करती हैं? In the molecules of water in liquid state, they exist between the atoms of helium in gaseous state, molecules of HCl gas, molecules of liquid chlorine. तो ये आप देखें, पानी के जो मालिक्यूल होते हैं उनमें लंडन फोर्सेस तो होती हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, तो इसमें सिर्फ लंडन फोर्सेस नहीं होती। एटम्स ऑफ हीलियम इन गैस स्टेट एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पर हीलियम के गैस के एटम एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। सो नो फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द हीलियम एटम एट हाई टेम्परेचर। सी ऑप्शन में है मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नहीं होती हैं, बल्कि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। Now we are left with only the molecules of liquid chlorine. चूंकि क्लोरीन जो है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के बीच में only and only London forces exist, London dispersion forces. So the correct option is option number D. In liquid chlorine you have, this is non-polar molecule, तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूलों के बीच में there are only London forces. Question number 79. Which one of the following is an example of ionic solid? तो डायमंड जो है ये कोवेलेंट सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बाइड भी कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन फेडरल के बुक में KPK के बुक में कैडमियम आयोडाइड की एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फेडरल बुक में है। कैडमियम आयोडाइड जो है इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। आम तौर पर स्टूडेंट समझते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है, बट इट इज़ नॉट प्योरली आयनिक कंपाउंड। सो कैडमियम आयोडाइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। तो इनमें नन ऑफ दीज इज़ आयनिक। 79 में ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, इनमें आयनिक कोई भी नहीं है। कैडमियम आयोडाइड इज नॉट प्योरली आयनिक कंपाउंड, इट इज कोवेलेंट सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 80. In the face-centered cubic lattice, a unit cell is shared equally by how many unit cell? चाहे फेस सेंटर्ड हो चाहे बॉडी सेंटर्ड हो,
तो हर यूनिट सेल जो है उसके गिर्द 6 यूनिट सेल होते हैं, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर, एक फ्रंट पर, एक बैक पर, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से. सो ईच यूनिट सेल इज सराउंडेड बाय 6 यूनिट सेल्स. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ईच यूनिट सेल इज सराउंडेड बाय 6 यूनिट सेल्स. क्वेश्चन नंबर 81. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, BCC स्ट्रक्चर. इसमें हर कॉर्नर के ऊपर एक एक पार्टिकल होता है और एक पार्टिकल इसके बिल्कुल सेंटर में होता है. अब चूंकि हर कॉर्नर जो है दैट इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल, तो यहाँ पर जो एटम अटैच होगा, जो पार्टिकल अटैच होगा, तो इसका सिर्फ 8वां हिस्सा इस यूनिट सेल के साथ काउंट होता है और बाकी हिस्से वो दूसरे यूनिट सेल के साथ काउंट होते हैं. सो दिस पार्टिकल डज नॉट बिलोंग टू दिस यूनिट सेल. Only 1/8 part of this particle belong to this unit cell. तो इसका 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल के साथ हम काउंट करते हैं. और चूंकि कॉर्नर के ऊपर टोटल पार्टिकल हमारे साथ 8 हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 से आंसर आता है 1. और एक इसके बिल्कुल सेंटर में है जो होली सोली इस यूनिट सेल के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो वो 1 इसके साथ आपने ऐड करना होगा. तो टोटल पार्टिकल जो है इसमें BCC स्ट्रक्चर में 2 होते हैं. सो वी हैव ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. BCC स्ट्रक्चर के यूनिट सेल में 2 पार्टिकल होते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 82. फॉर अ रिएक्शन PCl5 प्रोड्यूसेस PCl3 प्लस Cl2. इस केस में अगर आप देखें डेल्टा N जो है, डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो एक मोल ये है और एक मोल ये है, तो 2 मोल्स और -1 मोल. सो यू विल गेट 1 मोल. अब आपको पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाई RT रेज टू द पावर डेल्टा N, और Kc इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाई RT, और डेल्टा N जो है सो दैट इज इक्वल टू 1. तो Kp की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.85, R की वैल्यू 0.82 होती है और टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन है. तो क्वेश्चन नंबर 82 में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Question number 83. When the ratio of the concentration of the product to reactant is less than Kc. देखो, अगर प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के रेशो को अगर हम देखें, इसको हम कहते हैं कोशेंट ऑफ कंसंट्रेशन. तो ये कहता है कि अगर ये कोशेंट ऑफ कंसंट्रेशन लेस हो देन Kc, तो इसका मतलब ये होगा कि द रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो जब हम कहते हैं कि द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है. रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन उस रिवर्स रिएक्शन का जो स्पीड होता है दैट इज लेस. So when the ratio between the product and reactant is less than Kc, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन अब हो रहा है, जा रहा है. फॉरवर्ड रिएक्शन होने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रिवर्स रिएक्शन. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 84. क्वेश्चन नंबर 84. हमारे पास सिल्वर क्रोमेट है. ये जब आयनाइज होता है सो इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ सिल्वर एंड 1 मोल ऑफ क्रोमेट.
तो देखें अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास 1.31 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स है, इसका मतलब ये कि जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो इतना अमाउंट जो है वो इसका डिज़ोल्व हो जाता है। अब देखो इसका 1 मोल जो है वो इसके 2 मोल प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, वो इसका डबल होगा, तो ये हो जाएगा 2.62 इंटू 10⁻⁻4। और इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाता है तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी होगी 1.31 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो Ksp इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्रोमेट आयन। तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है 2.62 इंटू 10⁻⁻4 रेज टू द पावर 2 and this is 1.31 into 10⁻⁻4. So in this case the option B, option number B is correct. Option number B is correct. Question number 85. We have two solutions. One is solution number 1 and we have solution number 2. इसका solution 1 का pH जो है वो इसका pH 2 है और इसका pH जो है वो 6 है। तो देखो this is more acidic as compared to this one. जिसका pH कम होगा तो वो ज़्यादा acidic होगा और इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम है। ये उल्टा होता है, पीएच कम होने का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर पीएच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पीएच वो है 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होगा वो 4 नहीं होगा, वो 10⁻⁴ होगा। यानी इतना टाइम इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन नंबर 2 के मुकाबले में 10,000 टाइम ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। देखो पीएच में जब 1 का डिफरेंस होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसकी 10 टाइम्स उसमें फ़र्क होता है। अगर पीएच का डिफरेंस 2 है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में फ़र्क 100 टाइम का होगा। पीएच का डिफरेंस अगर 3 है सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिफर बाय 1000 एंड इफ द पीएच डिफरेंस इज 4 then the hydrogen ion concentration of two solution will differ by 10,000, that is 10⁻⁴. Question number 86. The strongest base among the following. तो ये याद रखें कि मीथेन जो है, मीथेन, this is the weakest acid, इसकी जो आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू होती है that is about 10⁻⁻55, which shows that it is very 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 weak acid. और आपने ये पढ़ा है कि Ka और Kb they are inversely related to one another. So what does it mean? इसका मतलब ये है कि weakest is the acid or weaker is the acid, so strongest will be its conjugate base. तो मीथेन का जो conjugate base होता है that is CH3 माइनस, इसको कहते हैं मीथाइड आयन, मीथाइड आयन। तो चूंकि ये वीकर एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर बेस। तो मीथाइड आयन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर बेस। इसी वजह से तो आपने देखा है कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट जो है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ये इवन आप देखें इवन अमोनिया, हालांकि अमोनिया बहुत वीकर एसिड है,
बल्कि बेस है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्गर बेस है कि ये इस अमोनिया से हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मीथेन बनाता है. So methyl ion is so much stronger base that even it can remove a proton from ammonia, although ammonia is a very very weak acid. So methyl ion is a very strong base. तो क्वेश्चन नंबर 86 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 87, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है कि रेट कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला हम लिखते हैं उसके डायमेंशन होते हैं टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन, रेज़ टू द पावर ऑर्डर एंड -1. लेट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वी हैव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the unit of K is per second. So the dimension is per time. This is the unit of rate constant for the first order reaction. Now look, K is equal to T inverse concentration, and what is the order of reaction? We have first order reaction. तो ये in order को शो करता है, तो ये हो जाएगा 1 - 1. तो K is equal to T - 1 or C raised to the power 0. So anything raised to the power 0 is 1. So you get T - 1. So this is the correct formula for the unit of the rate constant or for the dimension of the rate constant for a particular order of reaction. So 87 में C option is correct. Question number 88. For the first order reaction, the time taken for the reaction to decrease, its concentration decreases from 0.6 to 0.3. मतलब ये कि एक concentration जो है 0.6 से 0.3 हो रही है, तो इसमें 10 मिनट लगते हैं. मतलब हाफ लाइफ इसका 10 मिनट है, यानी कंसंट्रेशन जब हाफ होती है 0.6 से 0.3 हो जाती है. सो इट टेक्स 10 टाइम. तो व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू डिक्रीज इज कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.1 to 0.25. तो आप देखें 0.1 से 0.05 करने के लिए, 0.1 से 0.05 करने के लिए, यानी इसकी कंसंट्रेशन को हाफ करने के लिए 10 मिनट टाइम लगेगा. और 0.05 से फिर 0.025 करने के लिए फिर 10 मिनट टाइम लगेगा. तो ये असल में क्वेश्चन में 0.25 है, 0.1 मोलर से 0.025 है. दिस इज नॉट 0.25, 0.025 है. तो इसमें हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड? 20 मिनट विल बी रिक्वायर्ड. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 89. When the concentration time graph of a reactant indicate a constant half life. तो ये याद रखें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि अगर आप कंसंट्रेशन कम करते हैं तो हाफ लाइफ जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the half life is independent of the concentration. ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ पर कोई असर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नहीं पड़ता.
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 90, क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, ये जो है हमारे पास राउल्ट लॉ के मुख्तलिफ डिफिनीशन हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सारे राउल्ट्स लॉ के मुख्तलिफ फॉर्म हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 में हमारे पास एनर्जी डायग्राम दिया है। यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी H2 है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी H1 है। तो देखें, जब रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम हो, तो इसका मतलब ये है कि द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और डेल्टा H इसका नेगेटिव होगा। सो द ग्राफ शोज दैट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक process and it does not show any other, it doesn't give any other information. It says that the reaction is exothermic reaction. Question number 92, देखें, इस बात को मालूम करने के लिए कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जिसके लिए बाहर से एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी वो गिव्स एनर्जी पर डिपेंड करती है, विच इन टर्न्स डिपेंड ऑन एंथैल्पी चेंज प्लस टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज। तो ये तीन चीज़ें हैं, एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज और टेम्परेचर, जिस पर गिव्स एनर्जी डिपेंड करती है। तो सिर्फ एंथैल्पी से आपको पता नहीं लगेगा कि रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस और नॉट स्पॉन्टेनियस। सिर्फ डेल्टा एस से भी पता नहीं लगेगा और सिर्फ टेम्परेचर से भी पता नहीं लगेगा, बल्कि इन तीनों के मिलाप से हमें पता चलता है कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो अगर हम इस डेल्टा जी की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करने से मालूम करें और इसकी नेगेटिव जवाब आ जाए, तो फिर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और अगर डेल्टा जी ज़ीरो है तो फिर द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन विल बी इक्वल। सो 92 में ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी इट इज़ ओनली द गिब्स फ्री एनर्जी विच डिसाइड्स that whether a reaction will be spontaneous or non-spontaneous. Enthalpy alone cannot decide, entropy alone cannot decide the spontaneity or non-spontaneity. Specific heat of copper is 0.38 gram per Kelvin. What will be its molar heat capacity? तो देखो, कॉपर का 1 mole of copper that is equal to 64 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए आपको वैल्यू गिवन है वो 0.38 और 7 है। तो फिर 64 ग्राम के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 24.5। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो आपको मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 में अगर आप देखें तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। इससे जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने मालूम करना है। जिंक जो है ये मरकरी के साथ रिएक्ट करके जिंक +2 फॉर्म में चला जाता है और मरकरी जो है ये रिड्यूस हो रहा है। तो देखो, इस प्रोसेस में जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और मरकरी जो है ये रिड्यूस हो रही है। तो जब हम इसका सेल पोटेंशियल मालूम करेंगे, so we will be taking oxidation potential for zinc and we will be taking reduction potential for the mercury.
लेकिन आपको जो सेल पोटेंशियल गिवन है, तो जिंक के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। आप देखें इक्वेशन को इस तरह लिखा है कि E इज इक्वल टू -0.76, तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो फिर आपने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लेना है, यू हैव टू टेक द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड डेट विल बी, इसका साइन उल्टा करना होगा, 0.76 वोल्ट होगा। तो सेल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक which is 0.76 volt, and the reduction potential of mercury we have to include here, which is given as 0.86। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें, so you will get 1.62 volt। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 96। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ा था कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका कम है। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर सकता है। तो 96 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मतलब ये रिएक्शन फीजिबल है, और ये रिएक्शन फीजिबल इस वजह से है कि आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो कॉपर के मुकाबले में ज़्यादा है। तो आयरन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर रिड्यूस हो जाएगा और आयरन खुद ऑक्सीडाइज होगा, बिकॉज आयरन हैज़ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन द कॉपर। बाकी जो रिएक्शन गिवन है सो दे आर नॉट फीजिबल। जिंक जो है ये मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज जिंक इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैडमियम मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कॉपर जो है वो जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता बिकॉज कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 97। हमारे पास तीन एलिमेंट है, एक X है, एक Y है और एक Z है। ये कहता है कि इसका जो ऑक्साइड है ना वो एम्फोटेरिक है, और Y का जो ऑक्साइड है तो वो बेसिक है, और Z का जो ऑक्साइड है तो वो एसिडिक है। तो आप देखें पीरियाडिक टेबल में जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले हमारे पास बेसिक ऑक्साइड आता है, उसके बाद फिर हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड आता है, और जो जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जाता है सो वी गेट द एसिडिक ऑक्साइड। इसका मतलब ये होगा कि पीरियाडिक टेबल में Y जो है वो सबसे लेफ्ट साइड पर होगा, और X जो है इसके बाद वाला एलिमेंट होगा, और Z जो है वो इसके बाद वाला होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, और इसका इससे ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस इज़ बेसिक, दिस इज़ एम्फोटेरिक एंड दिस इज़ एसिडिक। सो द करेक्ट एटॉमिक नंबर विल बी Y, X एंड Z। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 97 में ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98। द एलिमेंट विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दिस इज इजी। बेरिलियम जो है इसका साइज छोटा है and it has high electronegativity, so it form amphoteric oxide। 99. The anhydride of HClO4। देखो HClO4 से अगर आप वाटर निकालते हैं तो इससे ये ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड और एनहाइड्राइड एक चीज़ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100। ये हमारे पास जो इस किस्म का ग्राफ है आप देख रहे हैं। आपने देखा है कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में और बाइंडिंग एनर्जी में इजाफा होता है, लेकिन जब हम मिडल तक पहुंचते हैं तो ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल जाती है।
लेकिन जब हम एक पीरियड के आखिरी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की हम स्पेशली बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज अप टू द मिडल, और फिर आगे जाकर ये कम होते हैं। तो ट्रांजिशन सीरीज का जो आखिरी एलिमेंट है वो सेकंड बी ग्रुप वाले एलिमेंट है, उसमें एक जिंक है, दूसरा कैडमियम है और तीसरा इसमें मरकरी है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट। ये जो लिंथियम है और हाफनियम है और रीनियम है और ऑस्मियम है और टंगस्टन है, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सिक्स्थ पीरियड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पीरियाडिक टेबल में सिक्स पीरियड में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है या बाइंडिंग एनर्जी है वो टंगस्टन की है। यहाँ पर इसने X लिखा है, यहाँ पर Y एलिमेंट है, ये प्लाटिनम है, और मरकरी का चूँकि d ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, 5d10 इसकी कन्फिगुरेशन है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। जिस तरह स्कैंडियम से जिंक तक हम जाते हैं तो जिंक हैज़ मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, दूसरे में यट्रियम से कैडमियम, सो कैडमियम हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर लिंथियम से मरकरी की तरफ हम जब जाते हैं so these three has minimum melting and boiling points in their respective periods। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये टंगस्टन, प्लाटिनम और मरकरी को शो कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, the violet color of titanium +3 in the solution is due to the central metal ion, no, water molecule, no, कॉम्प्लेक्स आयन, यानी पानी और आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन दोनों जब मिल जाते हैं तो इससे कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, सो द कलर इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 10101 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, 100 में, सॉरी 100 कॉपर के बारे में है कि इट इज़ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो इट इज़ डायमैग्नेटिक। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि कॉपर जो है ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो खामखा पैरामैग्नेटिक होगा। कॉपर हैज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट स्टिल it is diamagnetic because the atoms arrange in solid crystal in such a way that the individual dipole, the magnetic moment of the individual atom, they cancel out the effect of each other. तो as a whole अकेले एक एटम कॉपर का अगर आप ले लें तो that will be paramagnetic, but in the solid crystal when you combine the atoms and they make domains, so they cancel the effect of each other, and as a whole copper metal is diamagnetic। 101 ये ग्राफ के बारे में है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टंगस्टन, प्लैटिनम एंड मरकरी। 102 जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से कलर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 103 तो ये हमारे पास जो इस किस्म का ग्राफ गिवन है, यहाँ पर मीथाइल है, यहाँ पर मीथाइल है, दिस इज मीथाइल, दिस इज मीथाइल, सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो ये हेक्सेन है, और ये कार्बन 1 2 3, तो 3 के साथ 2 मीथाइल अटैच हैं, 4 के साथ 1 मीथाइल, तो नाम होगा 3 3 4 और ट्राई methyl and hexane। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, अल्कीन और ओजोन प्लस ओजोन मिलकर दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोपेनॉन और एक प्रोपेनॉल, तो ये कौन सा अल्कीन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है,
ये असल में 1 2 3 4 5, दिस इज 2 methyl एंड 2 पेंटीन। तो अगर हम इसकी ओजोनालिसिस करें तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसके मालूम करने का तरीका ये है कि आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा, ये असल में CH3 है, सो CH3, दिस C एंड दिस CH3, ये एक फ्रेगमेंट बन जाता है। और दूसरा फ्रेगमेंट मेरे पास बनेगा CH3, CH2 और यहाँ पर ये असल में CH है, तो ये CH। तो ये तरीका होता है प्रोडक्ट बनाने का कि आप इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से O अटैच करें और इसके साथ भी O अटैच करें। सो दिस इज द अल्कीन विच प्रोड्यूसेस प्रोपेनॉन यानी एसीटोन एंड दिस इज प्रोपेनॉल। सो फ्रॉम द प्रोडक्ट्स वी आइडेंटिफाई द अल्कीन एंड फ्रॉम द अल्कीन we can identify the products of ozonolysis। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 104 में ऑप्शन नंबर डी जो है ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, which group when attached to benzene when increase the reactivity? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए NHR, ऑप्शन नंबर ए NHR, नाइट्रोजन जब अटैच हो, और NH3 में भी नाइट्रोजन अटैच है लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज है, सो इट इज़ नॉट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट विल नॉट इंक्रीज द रिएक्टिविटी। NHR इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप। 106 में ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और OH आपस में मिल रहे हैं। तो आप देखें कि स्टार्टिंग कंपाउंड में ब्रोमीन जो है वो राइट साइड पर अटैच है, दिस इज ऑन द राइट साइड। और फाइनल प्रोडक्ट जब आपके साथ बना है तो उसमें ब्रोमीन राइट साइड पर है लेकिन यहाँ पर OH लेफ्ट साइड पर अटैच होगा। तो इस SN2 रिएक्शन में configuration of the molecule is changed and it will be 100% opposite from the configuration of the reactant, यानी ये उसका 100% उल्टा होगा। ये अगर राइट पर अटैच है तो ये बिल्कुल लेफ्ट पर अटैच होगा। So the configuration is 100% changed in this case। तो ऑप्शन नंबर डी is correct। Question number 107, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें आप देखें प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इससे प्रोपेनॉल भी बन रहा है एक रूट से और दूसरे रूट से इससे प्रोपीन बन रहा है। तो कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि दिस रिएक्शन नंबर 2 इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो अल्काइल हैलाइड से जब अल्कीन बनता है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना होगा, और 1 में जो हमारे पास अल्कोहल बना है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो दिस रिएक्शन अकर इन एक्वियस मीडियम व्हेन यू डिसॉल्व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वियस मीडियम। 108 में देखें अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल हो और आप इसको PCl5 के साथ मिलाते हैं तो अल्कोहल और PCl5 ये आपस में जब मिलते हैं तो इससे बनेगा अल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl प्लस एक HCl बनेगा, एक क्लोरीन इस H के साथ मिलेगा, एक क्लोरीन इसके साथ, और फास्फोरस और ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन फास्फोराइल क्लोराइड बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109, चूज द रिएक्शन विच डज नॉट रिक्वायर जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट। तो देखिए अल्कोहल और HBr इसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, HI के साथ भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जब अल्कोहल के साथ हम HCl मिलाते हैं देन यू नीड जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट। उसकी वजह ये है कि HCl का ये बॉन्ड
स्ट्रॉन्गर है, तो ये बगैर कैटलिस्ट के ये बॉन्ड टूटता नहीं है। तो अल्कोहल HBr और HI के साथ बगैर कैटलिस्ट के रिएक्ट करते हैं, बट इन केस ऑफ क्लोराइड यू नीड द कैटलिस्ट। तो B एंड C जो है दे विल नॉट रिक्वायर द कैटलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109 में ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, when 2 bromo and 2 methyl propane, आप देखें 2 methyl और 2 bromo propane, 1 2 3, कहता है कि अगर हम इसकी एलिमिनेशन करें तो देखो इधर से ब्रोमीन निकल जाएगा और लेट सपोज मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता हूँ, या फॉर एग्जांपल हम इधर से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये CH2 हो जाएगा और ब्रोमीन इधर से निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड दिस इज CH3 और ये CH3 अपनी जगह पर इंटेक्ट रहेगा। सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन माइनस HBr। सो 1 2 3 you get 2 methyl and 1 propene. तो ऑप्शन नंबर B is correct. Question number 111. कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट विच इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो ये प्राइमरी अमीन जो है, ये आपके प्रैक्टिकल की कॉपी में है कि प्राइमरी अमीन जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रिएक्ट एंड दे मेक आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम कार्बाइल अमीन कहते हैं। तो जब भी कार्बाइल अमीन का लफ्ज़ आता है तो आप ये समझें कि दिस इज़ द रिएक्शन विच इज़ कैरीड आउट फ्राम द प्राइमरी एमाइन। तो क्वेश्चन नंबर 111 में ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल which on oxidation with acidified sodium dichromate produces, कहता है कि कौन से कंपाउंड से ये कंपाउंड बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में देखो वी हैव दिस कंपाउंड, वी हैव CHOH एंड CH3। तो इसकी मैं ऑक्सीडेशन करना चाहता हूँ। तो देखें एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा और एक हाइड्रोजन जो है इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा। ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आता है फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो दिस विल मेक वाटर और यहाँ पर कार्बन जो है इट विल मेक अ डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, सो यू गेट दिस प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए यू नीड दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिलता है। तो 112 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज इंडिकेटेड यानी आइडेंटिफाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो क्रिस्टल ऑफ आयोडोफॉर्म। तो ये एक बात याद रखें कि आयोडोफॉर्म का फार्मूला है CHI3 आयोडोफॉर्म। तो अल्कोहल जो है, हर अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। वो अल्कोहल आयोडोफॉर्म बनाएगा जिसमें बीटा कार्बन हो, बीटा कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम अटैच हों, तो वो आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। एवरीवन कैन नॉट मेक। लेट सपोज मेरे पास मीथाइल अल्कोहल है, तो यहाँ पर दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। अब इसमें बीटा कार्बन है ही नहीं, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बना सकता। अच्छा, मेरे पास है ब्यूटानॉल, दिस इज ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल का मतलब ये है कि ये 1 ब्यूटानॉल है हमारे पास, तो दिस इज अल्फा कार्बन और यहाँ पर आई हैव बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन है इसमें, लेकिन इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये भी आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। 2 प्रोपानॉल, 2 प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर देखें दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन जिसके साथ OH अटैच है एंड दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो इसमें देखें बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन इधर भी अटैच हैं, इधर भी अटैच हैं।
तो इस वजह से 2 प्रोपेनॉल जो है ये बना सकता है आयोडोफॉर्म। और 1 प्रोपेनॉल, इसमें अगर आप देखें तो 1 प्रोपेनॉल में दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, तो यहाँ बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 3 नहीं है, तो ये भी आयोडोफॉर्म नहीं बना सकता। तो 113 में ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114, अल्कोहल आर वीकली एसिडिक and their ionization constant value is option number D, from 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 18। तो अल्कोहल जो है ये पानी के मुकाबले में they are weaker acids because they have lower Ka value। तो ये वैल्यू आपने, ये रेंज आपने अल्कोहल के लिए याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 115 को आप देखें। 115, which one of the following ketone will give a negative iodoform test? कौन सा कीटोन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो नहीं देगा? तो ये याद रखें कि ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन नहीं हो तो वो आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। तो 115 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आप देखें ये जो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज द फार्मूला, दिस वन इज CH3, ये हमने शॉर्टकट लिखा है लेकिन ये दरअसल इस तरह है। ऑप्शन नंबर ए को आप देखें। सो दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ आप देख रहे हैं देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है। तो ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच हों तब वो आयोडोफॉर्म देगा। यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है, सो इट विल नॉट बी एबल टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 115 एंड ऑप्शन नंबर ए। 116, why the carboxylic acid is more acidic than phenol? फिनोल के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है? तो इसकी वजह यह है कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, सो दैट इज मोर इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन। आप देखें दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इससे मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फिर इसके साथ मिलकर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा -O। तो यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे साथ आते हैं और दोनों में नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पर आता है, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिनोल में अगर आप देखें तो वहाँ से जब हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो वहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनते हैं लेकिन वहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होता है ऑन द कार्बन एटम, एंड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन कार्बन एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये रेजोनेंस का रूल है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इस वजह से है कि कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज हुआ होता है, जबकि फिनोल में नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज ओवर द कार्बन एटम, सो दिस इज लेस इफेक्टिव कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 116 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 117, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो इससे RH बनता है, अल्केन बनता है। तो इस रिएक्शन को असल में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम कहते हैं। बी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आप अगर देखें तो सबसे आखिरी केमिकल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो दिस रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। इसकी वजह यह है कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो निकल जाता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 118, एसिटिक एसिड और मीथेनॉल, दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज मीथाइल अल्कोहल। ये जब आपस में मिलते हैं तो अल्कोहल का OH बॉन्ड टूट जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है। यू गेट वाटर and you get this compound. So the name of this compound is methyl acetate. So you will get methyl acetate. Option number C is correct. Question number 119, polyamide is formed due to the condensation of hexane dioic acid with hexane diamine. ये हमारे पास है हेक्सेन और डाइअमीन, और ये है हमारे पास हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक, इसका एडिपिक एसिड इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं एडिपिक एसिड के या हेक्सेन डाइओइक एसिड के। तो ये जब इसके साथ मिलेगा तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H। तो हमारे पास इस किस्म का जो है पॉलीमर बन जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड पॉलीएमाइड, इसको कहते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एमाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एमाइड बॉन्ड। तो ये असल में नायलॉन इससे बनता है, नायलॉन 6,6 इसको कहते हैं। 6,6 इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो डाइअमीन है ये भी, इसमें भी 6 कार्बन है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके अंदर भी 6 कार्बन एटम होते हैं। सो दिस इज देयरफॉर कॉल्ड 6,6। और नायलॉन इज़ अ वेरी गुड सिंथेटिक पॉलीमर। इसको नायलॉन इस वजह से कहते हैं कि न्यूयॉर्क और लंदन में इसके बड़े बड़े कारखाने थे किसी वक़्त, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया नायलॉन। 119 में B option is correct. 120, when the acid is added to an amino acid, which one of the following will act as a base? तो आप देखें, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास अमाइनो एसिड है, दिस इज एन अमाइनो एसिड। आपको पता है कि अमाइनो एसिड जो है ये ज्वेटर आयन की शक्ल में होता है, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हुआ होता है। दिस इज H R, लेट सपोज दिस इज R, दिस इज R, यहाँ पर NH2 से NH3 बन जाता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट होगा तो इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, एंड दिस हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। इस किस्म के आयन को हम ज्वेटर आयन कहते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर एसिड डालूं, इसके अंदर हाइड्रोजन डालूं, तो ये H कहाँ पर मिलेगा? ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये नेगेटिव आयन, इसके साथ ये हाइड्रोजन मिलेगा, तो COO ग्रुप will gain the proton and this COO group will act as a base. तो option number B is correct. Question number 121. If absolute temperature of the gas is doubled and pressure is increased 4 times, तो देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल होने से क्या होगा? वॉल्यूम डबल होगा, लेकिन प्रेशर को अगर हम 4 टाइम ज़्यादा करें तो वॉल्यूम 4 टाइम कम होगा। तो टेम्परेचर डबल होने से वॉल्यूम डबल करें, डबल होगा, लेकिन प्रेशर हमने 4 टाइम ज़्यादा किया तो वो 4 टाइम वॉल्यूम को कम करता है। तो नेट रिज़ल्ट ये होगा कि वॉल्यूम जो है वो पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगा। तो 121 में ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 122 कहता है कि आप इसमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स मालूम करें, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो है वो कैल्शियम है और कैल्शियम पर +2 चार्ज है, तो इस आयन पर -4 चार्ज होगा, बिकॉज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव दे कैंसल ईच अदर एंड एज ए होल द मॉलिक्यूल हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस वजह से इफ द आयन विच इज
outside the coordination sphere and that carries positive charge, then the complex ion will have a negative charge, and such a complex will be known as anionic complex. Question number 123. How will you distinguish between methanol and ethanol? तो इसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के ज़रिए से इसमें फ़र्क कर सकते हैं. मीथानॉल, ये हमारे पास है मीथानॉल, एंड दिस इज़ इथानॉल. ये आप याद रखें कि वो अल्कोहल जिसमें बीटा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, इसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन है, इसमें बीटा कार्बन है ही नहीं, ये अल्फ़ा कार्बन है. तो ऐसा अल्कोहल जिसमें बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हों तो फिर वो आयोडोफॉर्म जो है वो बना सकता है, अदरवाइज़ दूसरा अल्कोहल वो नहीं बना सकता. तो मीथाइल अल्कोहल कैन नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म एंड इथाइल अल्कोहल कैन मेक. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 124. फिनोल जो है ये रिएक्ट करता है विद द एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. तो ऐसे HCl बनेगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड O, C double bond O और CH3. So this is an ester. R C double bond O R. This is ester. So you will get ester. This is esterification reaction, and option number D is correct. So this is the end of today's discussion. Thank you very much.